evening, sir. May I ask you in what capacity you are part of the event? Well, today actually I got a very unique call. I was asked to judge Femina Miss India, so that's very exciting because I've not done this before. And I was wondering on what ground should I judge, but I got the opportunity, so might as well enjoy it. I've seen the show on TV before, and now I'm getting an opportunity to judge it. So that's the reason I'm here. क्राइटेरिया क्या आपके क्या क्राइटेरिया रहेंगे आपके जब आप किसी को यहाँ पे जज करेंगे आप? Well, for me, I think everybody who's made it to this level is a winner. But I think it's very important for the, the lady who wins the competition, who's representing India, should have compassion, should have confidence, and should obviously be beautiful. जज भी कर रहे हैं आप जी। आज किसान को कुछ दबाव तो बेचने वाले हैं आप अपनी तरफ से आपकी तरफ से जी मैं देख सवाल होने वाले हैं बता सकते हैं ऑनेस्टली सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा पहली बार है जजिंग का, मैंने कभी लाइफ में किसी को जज नहीं किया है, तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ. बट आई थिंक आई जस्ट वट एवर कम्स टू मी नेचुरली एट दैट टाइम वो ही मैं पूछ लूँगा उनसे. डिपेंड्स ऑन द कंटेस्टेंट, डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर एंड वॉट इज़ इंट्रीगिंग अबाउट दैम. हम ऐसा माने कि ये जो आपकी बॉडी है वो आर्मी ऑफिसर की बॉडी है अभी भी काम चल रहा है सर, अभी भी तैयार नहीं है फिल्म के लिए. और काम करना है और बेहतर करना है बॉडी को. तो अभी तो ऑन द वे ऑफ डेवलपमेंट है. इसके अलावा हम देख रहे हैं इन दिनों ट्विटर पर बहुत कुछ बवाल हो रहा है लाइक ट्विटर अकाउंट किसी के हैक कर लिए जा रहे हैं जी. तो आप इसे कैसे देखते हैं आप भी इस चीज़ों से गुजर चुके हैं अरे सर, मैं क्यों हैक करना है यार, ऐसी कंट्रोवर्सी कम है. हम जो भी करते हैं उसमें ट्रोल होते हैं, ऊपर से हैक होने के बाद और ट्रोल होते हैं. तो माइट एज वेल प्लीज़ हमारे अकाउंट्स को छोड़ दो. नाउडेज इट्स अ स्केरी फीलिंग टू ट्वीट. I have to review my tweet 20-30 times before I put it out so that it doesn't hurt anybody, it doesn't gets misunderstood by anybody. अगर जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं कितना फॉलो करने वाले हैं फेवरेट प्लेयर भी हैं So for me, I'm a huge fan of Mr. Dhoni. I'm a die-hard fan of him. So I'm obviously excited because it's India versus Pakistan. It's something that is the biggest sporting event, according to me, at least. It's the biggest sporting event. I think tomorrow the country is going to be on a standstill. Everybody's going to be enjoying the match, and I just can't wait to watch it. And I'm just hoping Mr. Dhoni goes and hits a century. Ayush, जी. you must have to say like this was such a wonderful orator. You have developed yourself. Skillful voice. Have the ups and downs to take in your voice when you are delivering your bites. It's really very impressive these days. Thank you, sir. Thank you so much. इतनी सारी मिस इंडियाज हुई हैं जी. कई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रिजल्ट भी जी. है. सबसे यादगार मोमेंट आपको कब लगता है आपने देखा होगा किसी मिस इंडिया का जो Well, for obvious reasons, one of the most, there's so many beautiful women who have represented India, and so many women have made India proud. But I think Sushmita Sen, Aishwarya Rai, ma'am, Diya Mirza, they have been so popular and they've really gone ahead and made India proud. But I think Sushmita ma'am and Aishwarya ma'am are the pioneers of this thing. Thank you. Thank you. Take care. Thank you. Okay, thank you. Come this side. Hi, how are you? आप लोगों ने माशाल्लाह मेरा पूरी एक अपना ब्रांड बना लिया इंटरनेशनल लेवल पे एज फार एज ब्यूटी एंड डिज़ाइनिंग एंड इज कंसर्न. आज आपके लिए क्या मापदंड रहेंगे जब आप जज करेंगे? Do I have to answer in Hindi or English? You can mix Any it language, naturally. whatever you want. English. English नहीं मैं फ्रेंच पे I wish. I think Miss World, Miss India is actually really close to our heart because, Manushi had worn our outfit. So it's really close to our heart. We worked with Miss India organization for far too long to know everything about them. And it's always a pleasure to work with them. And we are looking forward to the judging tonight.
and everyone's really amazing. So it's going to be a tough competition That part we know, but what will be your criteria tonight? tonight. What's going to be your criteria? Say? I think good looks, number one. Stage presence is number two. And third is confidence. I think so. Confidence is key. If no matter how you carry off anything, but if you're confident, I think that's what is most important. So three things is very important. Any suggestion you would like to give to the contestants? I think really being confident, having the right attitude, and being a good person, like being genuinely a good person, really is a thing. So yeah. That's it. Thank you so very much. Thank you. Thank you. Why was that big smile when I said that? He was like, done. Okay. Yes. Let's talk. Oh, hi. It's so nice to see you. It's always nice to see you. I understand this is not your first time as a part of Yeah. This is my third year. Yeah. and what you listed in these three times, what it means. Bhaiya, Shanti rakho. What it means to be on the stage. I think this is the biggest platform, you know, Femina, Miss India. I don't know how many years old is this. We should get this right. 56 years. So I think that itself just tells you what a big, long history that this pageant has. And that is how important it is. And I think it gives you that kind of experience and exposure. So it's very important, especially because it has so much history attached to it. It's 56th year, you know, so yeah, it's a long time. You have always been admired for your charm and your beauty. Thank you. What is your criteria while judging and in general for the beauty? I was just talking about that. I think the most important thing is confidence, you know. I mean, यहाँ तक अगर ये लड़कियाँ आई हैं, they obviously are all very good. They look great and they, you know, look fantastic. Everything is perfect. But I think beyond that is confidence. सबसे ज़्यादा जो एक attractive चीज़ होती है, I think, is your self-confidence. And that is what really makes you stand apart, you know. Not even overconfidence, but I just mean like this whole sense of who you are and you're sure of yourself. So if I was to look for something, I think that's what I'm looking for. 56 years और साथ में आपके भी 15 साल आपके Yes. मेरे भी ऐतिहासिक रहे हैं ये। जी, जी. संपूर्णता सेटिस्फाइड हैं आप अपने इस करियर को लेकर? I think the key is कि कभी भी आप पूरी तरह satisfied नहीं होना चाहिए. Content होना चाहिए, पर satisfied नहीं होना चाहिए. Slight difference. So I think I'm content in the sense कि जितना मिला है बहुत मिला है और जितना थोड़ा काम किया है उसके हिसाब से मुझे जितना I think acknowledgement मिला है, जितना इंडस्ट्री ने audiences ने चाहा है वो बहुत है मेरे लिए. But I definitely want to do more. And inshallah, I should probably get another 15 years. So let's see, but it's been good. बहुत सारी बातें करती है, सम्मोहित कर देती है। आपसे ज़्यादा कोई नहीं करता है. You are like the most dramatic man I know. But thank you. You always put a smile on everyone's face. Yeah. रंगीला कल भारत वर्ल्ड कप का समारोह चल रहा है। Very important match. जी, जी. उत्साहित हैं आप क्योंकि बारिश इधर उधर खेल रही मैच। I know. Well, India-Pakistan match, I think हमेशा से has been a historically exciting match always, you know. So of course I'm looking forward. Or your World Cup especially, I think there is so much of noise around it. And it's of course it's England, you know. I think it's the what's it called? Like the land of where it came from, you know. It all started. So it's kind of interesting. It's come back to London. I mean England. Yeah. फेवरेट प्लेयर अगर आप बता सकें आप। I think Dhoni would be my favorite.
favorite. Virat, of course, is very exciting and aggressive, and he's got this whole, the young blood. But I think Dhoni just has this amazing grace about him. एक confidence, एक grace है, एक sense of, there's composure about him, which is nice to see in a sportsman. वो शायद ऐसा बोल रहे थे कि वो आप उनकी फेवरेट एक्ट्रेस है, ऐसा कुछ है? Well, I don't know. मुझे साक्षी ने एक बारी कहा था. So I met Sakshi and Dhoni at the airport. So she told me. So I don't know. I guess. ग्रेस में But वो मेरे I am his fan. Yeah. प्रतिबिंब लग रहा है आप दोनों में। अच्छा हो गया. Thank you. Bye. थोड़ा सा प्रोफाइल। Thank you. Have a pleasant evening. Excuse me, right side and left hand. Indian formal greetings, people like holding the hands. Yeah, that looks nice. Looks brilliant on you. Thank you. I love your food as well. I've been eating a lot of battered chicken. Yeah. I love it. When I said we proceed towards left side, they are also want to have pictures. Yeah, but I should wait for them. Shall we cross? Okay, good. Thank you very much, guys. Hello again. This was very soon. Good evening, Vanessa. Good evening, everyone. We have to congratulate you winning the crown last year, and we understand that you're the first person from Mexico to win this crown. Yes, I'm the first Mexican to ever win the crown. This has been such an honor, and I'm very happy to be here in India showing off this beautiful crown. You're here for some days now. Yes. Experience of what you have been going through these days. Well, we landed very late the first day, but the first thing I got was battered chicken. That was the first thing. Off the plane to the hotel, and then delicious food. Next morning, I open my window and I see the sea. And I didn't realize that we were next to the ocean. So that was quite a surprise. I love the people. They have been so nice. And the sounds of the city, those are very lovely as well. So I'm happy. Now, as you judge the Miss India finale tonight, what you will be the criteria from your side, which you will keep in mind? You yourself has been a contestant. Yes. So you must be understanding what contestants might be going through. Yeah, so I think we have to be very benevolent to the participants because I've been there and I know that you're very nervous. It's your night to shine and it's all or nothing. So if they kind of trip or something, those things doesn't really matter. It matters the way they answer the question. It matters the way they portray themselves and how much passion they bring to the table. That's what I want to see. I want to see them shine their smiles and just be very confident about themselves. Any piece of advice, suggestions would you like to extend to them? Well, I just want to remind them that we are here because we serve a bigger purpose. We're not here to wear the crown. The crown is a symbol of the mission we carry. So just be very passionate about your Bitter with a Purpose projects and be real. That has to be your motivation. The people has to be your motivation. Otherwise, it makes no sense to be here.
what is the impression you carry of India as a country? I get an impression that you're very compassionate, and I know this because all your contestants are super strong in the world stage. When you go to Miss World, there are the girls to watch out. They are very compassionate, they have very good projects, they all dance, they all smile, they're beautiful. So you're talented people, but you're more compassionate. I like that. Would you like to explore the opportunities in India as far as your work after the crown proceeds to the next Miss World? Yeah, of course. I would love to come to India and give all that I have to give, all my knowledge, or working, I don't know, they were asking me if I could go to Bollywood, but someone would have to teach me how to dance, and Hindi probably, that will be helpful. Probably in these days, could you learn some words of Hindi or Urdu would you like to? Okay, so far the names are the hardest thing for me. Like, I had such a hard time with even Mr. World, Rohil Khandelwal. That was so hard, it took me like 10 times to pronounce it right. But the only word I know how to say is namaste. Thank you very much. You were lovely. Stay in India. Thank you very much. Bye-bye, guys. यहाँ पे कैसे हो आप? गुड इवनिंग। डांस को तो आप जज करते ही हैं। जी आप किस कंटेस्टेंट्स को किस नजरिए से आप लोग करते हैं? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ अंदर, बट इतना है कि बट इतना है कि जस्ट आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं यहाँ पे जज पैनल में बैठा हूँ और मुझे जज करने के लिए कहा गया, बट मेरे ख्याल से डांस को जज करना आसान है, बट ये थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। इससे पहले भी आप चुने थे? नहीं, ये पहली बार मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर करा दूँगा, बिल्कुल। क्या प्रश्न रहेंगे आपके? मतलब अगर से कुछ अंदाजा अगर आपको? एक्चुअली अंदाज़ा नहीं है, बट कुछ तो होंगे, इंटरेस्टिंग ही होगा जो भी होगा, वो वहीं पे निकलेगा जो भी निकलेगा। कुछ सजेशन करना चाहेंगे आप इन युवतियों को? देखिए इनको मैं सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सारी जितनी भी ऑल वुमेन आर ब्यूटीफुल, सो मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे क्या उनको कुछ टिप देना चाहूँगा, मैं नहीं दे सकता हूँ वैसा। बस मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, आई एम गोइंग टू वॉच इट, आई एम गोइंग टू एंजॉय इट एवरी मोमेंट। ये तो मतलब अच्छे से आपने पॉलिटिकल दे दिया आंसर। फिल्म के बारे में बताइए अभी। फिल्म के 3 स्केड्यूल ख़त्म हो गए हैं, लास्ट स्केड्यूल बचा है, अभी ख़त्म हो जाएगी वो भी, और 24 जनवरी 2020 इज़ द रिलीज डेट। बहुत बड़े स्तर पे बनाई है इस बार आपने, हमने कई चीज़ें डाली हैं इसमें, मनोरंजक बनाई है, कुछ थोड़ा आगे ज़्यादा बोलिए। जी ये स्ट्रीट डांसर 3D है, तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही, और बहुत बड़ी कास्ट भी है मेरे पास। तो इस बार पहली 2 डांस फिल्म देख चुके हैं आप लोग, तो अब तीसरा बनाएंगे तो उसको और बड़े लेवल पे लेके जाना, तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से सब कुछ करने की, तो अब देखते हैं क्या होगा। नए लोग भी जुड़े हैं के साथ का भी वो डांस की हो गया है, तो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमने सुना कि विदाउट एनी रीटेक उन्होंने डांस टीचर पूरा। जी, वो प्रभु देवा हैं, उनका नाम ही प्रभु भी हैं, देवा भी हैं, तो उनका नाम ही इतना काफ़ी है। यस, एक गाना किया है हम लोगों ने, और मुकाबला को रिक्रिएट किया है, और उसका एक टेक उन्होंने किया है जो बहुत ही लंबा टेक है, और 1 टेक में दे दिया था उन्होंने, तो अमेजिंग। अलावा जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच भी एक बार जी, आपका फॉलो करते हैं, एंड आपका फेवरेट प्लेयर अगर आप बता सकते हैं? इंडिया के सारे प्लेयर्स मेरे फेवरेट हैं, इंडिया मेरा फेवरेट है, और पूरी तरीके से और पूरे दिलो जान से हम इंडिया को ही चेयर करेंगे, और 100% इंडिया ही जीतने वाली है। सो मज़ा तो आने वाला है, और बिल्कुल फॉलो करता हूँ मैं क्रिकेट, मज़ा आया। थैंक यू।
आदाब, कैसे हैं आप? बिल्कुल आप एप्ट हैं मतलब इस कॉन्टेस्ट को जज करने के लिए। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है आप अरे और भारतीय सुंदरता को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाने के लिए मैं आप कौन सी अब वो तो मुझे पता नहीं, मुझे बहुत ही प्यारा सा एक निमंत्रण आया कि आप आइए यहाँ पे और यहाँ पे इवेंट को जज कीजिए। एंड आई थिंक इंडिया का तो हमारा ट्रेडिशन रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स गए हैं इंटरनेशनल स्तर पे और बहुत सारे एक्कोलेट्स जीत के आए हैं हमारे देश के। एंड आई रियली फील कि आज भी हम ऐसी ही 3 लड़कियों को चूज़ करेंगे जो डेफिनेटली अपने पर्सनल लाइफ में तो ज़रूर बट ऑल्सो एट द इंटरनेशनल लेवल फॉर द कंट्री विल मेक ऑल ऑफ अस रियली रियली प्राउड। स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दे रही है मतलब लाइक अपनी पर्सनैलिटी से आज आप थैंक यू आई डोंट नो, मतलब मैं तो वही हूँ शायद नज़रिया बदल गया है। ये मैं डिज़ाइनर का नाम भूल चुकी हूँ, मैं बहुत ही, मेरी मेमोरी इज़ वेरी बैड। स्टाइलिस्ट इज आस्था, शी स्टाइल मी टुडे, इट्स अ लेबनीज डिज़ाइनर और हमने बहुत लास्ट मिनट डिसाइड किया कि हम ये पहनेंगे। आई थॉट मिस इंडिया है और हम चाहते हैं कि वी फाइंड मिस इंडिया टुडे होपफुली इंशाल्लाह फॉर द एंटायर कंट्री who's a perfect balance of good looks, a great personality and is a strong woman, not afraid to speak her mind. So I thought maybe this is a good outfit to wear for tonight. मापदंड नहीं होगा, आई थिंक सबसे ज़रूरी बात है सब बहुत ही खूबसूरत है। आई थिंक हिंदुस्तानी लड़कियां वैसे ही बहुत सुंदर होती हैं, उनके अंदर की सुंदरता, उनका इंटेलिजेंस, उनका कॉन्फिडेंस एंड फॉर मी व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट इज़ यूनिक पर्सनालिटी। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि आप सब में उसके बावजूद कि आप सब सुंदर हैं और सब ने अच्छा, सबको बहुत हेल्प मिली है, बहुत सपोर्ट मिला है फॉर द बेस्ट स्टाइलिंग, बेस्ट हेयर एंड मेकअप, उसके बावजूद आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप अंदर कैसे सोचती हैं, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। शहर में आपके पोस्टर लगे हुए हैं, सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं वेब सीरीज के लिए, बिल्कुल आपको जी प्रतिक्रियाएं मिली होंगी। जी, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं एंड आई एम थैंकफुल टू एवरीवन बिकॉज पिछले साल मैंने पूरा साल निकल गया सिर्फ आई वाज वर्किंग ऑन लैला और बहुत ही स्पेशल शो है और आई थिंक कह रहे हैं सब लोग कि इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, मतलब आए तो आई गेट गूज फ्लैश बिकॉज हमने बहुत प्यार से बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है एंड बहुत ब्रेव शो है। सो आई रियली आई एम लविंग ऑल द फीडबैक एंड रिएक्शंस। किनका रिएक्शन? मेरे भाई यहाँ पे है नहीं, वो लंदन में है और वहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं वो 83 की। तो मैं बहुत अपसेट तो नहीं हूँ बट उनको बहुत मिस किया मैंने स्क्रीनिंग वाले दिन और रोज़ मैं उनको कल रिलीज़ हुआ था तो मैं कल से उनको तंग कर रही हूँ कि आप प्लीज़ जल्दी देख के मुझे बताओ कि क्या रिस्पॉन्स है। तो व्हाटएवर रिव्यूज़ आर कमिंग तो मुझे वो मैसेज करता रहता है और उसने अब तक देखा नहीं, वो शूटिंग कर रहा है बट आई थिंक जैसे ही वक्त मिलेगा यू वॉच इट। सारे दर्शक चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के मैच के लिए अपने Hey, I swear, I'm very, my heart is in my mouth. I can't wait to watch. Not to stand there and crowd anymore. Thank you. हेलो, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। हाँ, अच्छा लगा आपको? कुछ नहीं, ज़्यादा थोड़ा सा वर्क ऑन जैकेट है और स्टाइल इट विद द मैट, द अदर थिंग्स आर मैट, ऐसा कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, अच्छा दिखा मुझे पहन के। मैं तो देखने आऊँ कितने ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं लोग दुनिया में। आई थिंक दिस इज़ वन इवेंट जहाँ पे देयर आर नो बाउंड्रीज फॉर ब्यूटी एंड इट्स लिमिटलेस, इट्स द बेस्ट प्लेस टू बी। आपके अनुसार मिस इंडिया विनर की क्या क्वालिटी
बहुत क्या क्वालिटी होनी चाहिए मिस इंडिया में? मुझे लगता है एक बहुत ही प्यारी सी ऑनेस्ट स्माइल होनी चाहिए। आई थिंक उससे सब कुछ हो जाता है। उसके आगे मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है। इसके बाद में आपने एक साउथ की फिल्म देखी है, आप मतलब किल करते हैं किसी का बहुत ही डिफरेंट अंदाज में। अच्छा, हाँ। और भी आपकी ऐसी कोई फिल्में आने वाली है साउथ में? अभी तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं विजॉय सर के साथ। फिल्म का नाम है तैश। अगले महीने से शूट शुरू है लंदन में। रिवेंज और रेज की कहानी है और मेरे लिए काफ़ी अलग है। और विजॉय सर के साथ में काफ़ी 2.5 साल से कोशिश हम लोग कर रहे हैं साथ में काम करने की। एक फिल्म हम लोग करने वाले थे अग्नि नक्षत्रम का जो रीमेक था, वो नहीं हो पाया इटली वाला। इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। लंदन में शूट है अगले महीने से। क्या? हाँ हाँ हाँ, माइथोलॉजिकल इंडियन माइथोलॉजी पे बेस्ड है, जो सतयुग के टाइम का जो सुपर हीरो हमारे भी हैं। 7 चिरंजीवी जो इमॉर्टल्स हैं। हम लोग बाहर जाते हैं पर हमारे पास भी काफ़ी स्टॉक है, उसके ऊपर है। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। प्राउड फील करता हूँ कि हमारी खुद की कहानी है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सेम सवाल है। हाँ। तो आप कितना फॉलो करने वाले हैं और आपका फेवरेट प्लेयर? मेरी फेवरेट प्लेयर आई थिंक पता नहीं, मैं धोनी सर के आगे बढ़ नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है कि उनको मैं बस फील्ड में उतरता देखता हूँ और मुझे बहुत ठंडक महसूस होती है। आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग्स आई हैव एवर कम अक्रॉस। उनके साथ मैंने एक शूट भी किया था, छोटा सा ऐड किया था। आई जस्ट लव ऑन एंड ऑफ द फील्ड। एक मिनट लाओ। From there. हाय, कैसे हो? मैं यहाँ सिर्फ एंजॉय करने आई हूँ। मैंने आई मीन द गर्ल्स आर लुकिंग ब्यूटीफुल। आई सॉ द पिक्चर ऑफ देम ऑन बॉम्बे टाइम्स और काफ़ी स्टनिंग लग रहे हैं एंड आई एम वेटिंग फॉर कटरीना's परफॉर्मेंस। आई हर्ड शी इज परफॉर्मिंग। Beauty with brains and who can serve a purpose. That's what I think they are, and yeah. नहीं, मैं सिर्फ देखने आई हूँ। या मैं सिर्फ अटेंड करने आई हूँ। थैंक यू। अभी बता दिया तो सरप्राइज एलिमेंट चला जाएगा। रोमांटिक होंगे बट ऑल्सो एक्सप्लोरिंग अदर ग्रूवी नंबर्स एंड अदर जॉनर्स एज वेल। डे बाय डे आपके 2-3 जितने भी गाने हैं ट्रेंडिंग में भी आए और फैन फॉलोइंग भी बहुत ही। मीम्स भी बने, वो देखे आप? कैसे देखते हैं आप इतने कम टाइम में पॉपुलैरिटी चली आपको? मैंने कभी सोचा नहीं था कि गानों को इतना प्यार लोग देंगे, बट उन्हें पसंद आया, कुछ स्पेशल होगा गानों के बारे में। आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल और मैं आगे भी इतनी मेहनत करके और अच्छे गाने लेके आऊँ। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो आप फॉलो कर पाती हैं आपको? मैं वैसे क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करती, बट आई थिंक विराट कोहली इज़ एन अमेजिंग प्लेयर
और कल मैं जाऊंगी मेरी फैमिली के साथ इंडिया पाकिस्तान देखने। मैं गई भी थी हैदराबाद, देखा नहीं आपने? मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत हम्बल पर्सन है। मतलब उनको देख के ऐसा फील होता है कि बहुत इंटिमिडेटिंग फील होगा, बट वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू हिम इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। एंड वहाँ पे फिल्म सेट जैसा नहीं लगा, घर जैसा लगा। बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया हमें, और काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बातें भी की। सो आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस मीटिंग देम। थैंक यू। Hi sir, how are you? नहीं सर, मैं जज नहीं कर रही, आई एम अ मेंटर। मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे मेंटर रह चुकी हूँ, सो दिस इज़ माय 3rd year एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। आई थिंक हर एक लड़की की अलग अलग क्वालिटी होती है। आई थिंक उसको दबा के किसी और की तरह ना बने, एंड टू शाइन इन देयर ओन स्पेस एंड इन देयर ओन मैजिक शुड बी द रियल क्वालिटी दे शुड हैव, एंड जस्ट टू बी ट्रू टू देमसेल्व्स। सो मैं इन लड़कियों को पहले ऑलरेडी मिल चुकी हूँ, 30 लड़कियों को मिल चुकी हूँ, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। मैं खुद ईस्ट और वेस्ट जोन की मेंटर हूँ, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें मैंने सिलेक्ट किया है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी विच गर्ल विन्स। Obviously, I have a few biases, and I'm hoping, and my fingers are crossed, that somebody from my zone, that is the east or the west zone, wins tonight. मुझे जितने सवाल जवाब करने थे मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, क्योंकि जब वो सब कॉन्टेस्ट लेवल पर आते हैं और जब वो अपनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिलेक्शन मैंने की है विद द टाइम्स ऑफ इंडिया। सो या आई मीन गेटिंग टू नो देम बेटर, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द गर्ल्स स्टैंड फॉर, मेकिंग श्योर दैट दे रिप्रेजेंट देयर स्टेट्स, वो ऑलरेडी हो चुका है। जी नहीं, हाल ही में मैं रोडीज़ के लिए शूट करके आई हूँ। उसके बाद मेरा एक और शो है जिसका नाम है BFFs with Vogue, उसे अभी मैंने ख़त्म किया है, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जी, you know, I used to be a very big follower of cricket even earlier, because I've grown up in a house with my father and my brother watching cricket, and now I'm married into a family that is a cricket family. तो इस मैच की almost 4 साल से हमारे घर में बात चल रही है। तो you can imagine the level of excitement. बस अब बारिश ना आए। Yes sir, आप बस कर दीजिए बस। ट्विटर पर हम देखते हैं कि लोगों का ट्विटर हैक हो जाता है, तो इसे कैसे देखती हैं आप? एंड जब आप कोई चीज़ें ट्वीट करती हैं तो क्या डर होता है आपको इन सारी चीज़ों का? क्योंकि लास्ट डे हमने देखा मिस्टर बच्चन का ट्विटर हैक कर दिया गया, उस पर इमरान खान आपके PM हैं उनकी पोस्ट कर जी। इसे कैसे देखते हैं? Oh, I'm sorry, I'm not aware of this, but जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि लोग बोलते हैं कि हैक हो जाता है, ट्विटर हैक हो जाता है, इंस्टाग्राम का। I mean, this is social media is a digital world that we're living in. तो ये बात आपने मुझे बताई, so thank you very much. जाहिर सी बात है कि मैं ट्विटर आजकल ज़्यादा चेक नहीं करती for obvious reasons, but I hope ये मेरे साथ ना हो। Thank you, sir.
great interview. 360, 180, 210. I got your back, buddy. I got your back. Thank you. हेलो सो आपको मिस वर्ल्ड या किसी ने आप हमें ज़रा बताइए कि मिस इंडिया होने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके अनुसार? वेल एक कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है मिस इंडिया होने के लिए, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट क्वालिटी है वो है सेल्फ बिलीव, क्योंकि आप एक पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हो वहाँ पे. सो द गर्ल हु एक्चुअली बिलीव्स दैट शी कैन डू इट डिजर्व्स टू विन इट. मैं जज रह चुकी हूँ पिछले साल और कंटेस्टेंट भी रह चुकी हूँ. थैंकफुली अब की बार मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में आई हूँ. आई विल बी को होस्टिंग अ सेगमेंट. सो आई थिंक मैं डेफिनेटली गर्ल्स को स्पॉट में पुट नहीं करूँगी. सो नो क्वेश्चंस फॉर देम. इसके अलावा क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट हम देखने को मिलेंगे जो सवाल आपसे बार-बार पूछे जाते हैं? और मैं हमेशा की तरह यही जवाब दूंगी, जिस दिन मैंने कुछ पक्का साइन किया और मैंने अपना मन बना लिया है, उस दिन मैं खुद ही आप लोगों को बताऊंगी. सो एवरीवन विल ऑटोमेटिकली. इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है तो कितना फॉलो करती हैं आप? और आपका फेवरेट प्लेयर? मेरा फेवरेट प्लेयर डेफिनेटली विराट कोहली. एंड कल इंडिया पाकिस्तान का मैच और फादर्स डे भी है, तो मैं पापा के साथ वो मैच डेफिनेटली देखूंगी. होपफुली बारिश कुछ गड़बड़ ना करे, बट वेटिंग फॉर दैट मैच टुमारो. फादर्स डे की विश, आई थिंक अ वेरी हैप्पी फादर्स डे टू माई सुपर हीरो. मेरे पापा मेरे लिए बहुत स्पेशल है और हमेशा से उन्होंने मुझे बोला है कि द स्काई इज़ द लिमिट. एंड आई थिंक ऑल फादर्स आर वेरी स्पेशल. दे लाइक दी सोल्जर्स प्रोटेक्टिंग their daughters. So I'm very happy Father's Day to all of them. Thank you so much. आपकी फिल्म आरा मुझे बहुत ही पसंद आ रही है. स्पेशली जो आपका कैरेक्टर है वो भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. बताइए what's your feeling? It's a very nice feeling. Of course, I had a very small role in the film, but just to be a part of a movie which is so huge, and you know, to be a part of this massive success is an honor for any artist, and I'm just really lucky and happy that I was a part of this project. So yeah. So yeah, Sunil Grover is my husband in the movie, and it was really nice to shoot with him. He's a sweet, sweet, sweet man, very talented, very funny, and I had a great experience shooting with him and Salman sir. Yeah. So I'm performing tonight, which is really, really cool. I'm amongst some great performers like Katrina Kaif and Vicky Kaushal and Moni Roy, so it's an honor and I'm very excited. Thank you. That's it. It's actually started at 8:30. I know myself. So it's just half an hour.
we're just Hello. Hi. Thank you. Actually, नेहा मैम ईस्ट और वेस्ट की हैं, मैं नॉर्थ एंड साउथ की हूँ. आई थिंक चारों जोन्स बहुत भारी हैं. ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट, है कि नहीं? बट आई थिंक मेरे लिए ये एक लाइफ का एक फुल सर्कल बन गया है. From being a Miss India winner, from winning an international pageant, to mentoring these amazing girls, state winners from different states. उनके साथ जब मेरी पहली मुलाकात हुई इंटरव्यू के दौरान, even before they were selected for the state level contests and they went on to win those, what really made us choose these girls, these particular girls, was their individuality. और मैंने देखा है कि पिछले दो तीन महीनों में जिस तरह से वो अपनी सेल्फ एश्योर्डनेस को, अपनी पर्सनैलिटी को और भी संवार चुकी हैं, वो आज रात को हमें देखने को मिलेगा. Be yourself. I've always told them to just be themselves, because there is nothing more attractive and beautiful than a woman who knows herself and who is just herself. अभी विकी कौशल ने एंट्री मारी थी स्टेज पर बैक स्टेज से और काफ़ी धूम मचा चुके हैं वो. It's going to be a power-packed night with amazing performances. We have some wonderful judges. I'm really looking forward to being there. मैं क्रिकेट को बहुत 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 पसंद करती हूँ और इंडिया पाकिस्तान का मैच मैं ज़रूर देखूँगी और मुझे यकीन है कि क्रिकेट की ही जीत होगी. इट्स काफिर के रिस्पॉन्सेस को देखकर और सुनकर मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह रिएक्ट करूँ. आई एम जस्ट वेरी ओवरवेल्म्ड बाय द लव. रिव्यूज़ आने लगी हैं और सब 5 स्टार्स दे रहे हैं, 4 स्टार्स दे रहे हैं. एक आर्टिस्ट के लिए मैंने एक्चुअली रिलीज़ होने से पहले ही आप सबसे यही कहा था कि जिस शिद्दत से, जिस प्यार से और जिस तरह की ये कहानी है, ये हम सबसे ऊंची है और अगर वो लोगों के दिलों तक पहुंच रही है तो वो बहुत बड़ी बात है. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. थैंक यू. हैव अ गुड इवनिंग. There's a visual speech. Finish, voices.
Together.